greetings to Mr. Sardar, Mr. Siddharth, who is moderator of this meeting, the special speakers who came from the different university and colleges, and the office directors of Bahujan Swabhiman Sangh, friends, enemies, and chamchas who are working for the Brahmin parties. इस कार्यक्रम के संयोजक मिस्टर सिद्धार्थ गौतम जी, इस सभा को संबोधित करने आए विभिन्न वक्तागण और इस सभा में मौजूद हमारे साथी, विचारधारा के दुश्मन और ब्राह्मणों के जो चमचे हैं, उन सबको हमारा हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। Because this meeting, कई तरह के लोग होते हैं सभा में, इसलिए सबको अभिवादन। it is not a seminar or it is not a workshop. He announced as a public meeting. Public meeting means enemy also is here, or chamchas also is here. So I want to respect those chamchas also and enemies also. No, why? Nowadays chamchas are a very big problem to our society, not enemies. The word chamcha is how disturbing, huh? ये कोई सेमिनार नहीं है, ये ओपन पब्लिक प्रोग्राम है और ऐसे कार्यक्रमों में हर तरीके के आदमी, मिशनरी आदमी भी होते हैं, समाज में जो चमचे टाइप के लोग होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबका एक साथ अभिवादन करूं। When you conduct a seminar, means there is not an issue. Okay. Yes, I am a politician, socio-political इसमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, no one will disturb. इसको डिस्टर्ब करना है तो जा सकता है। मैं एनी टाइम को बुलाऊं, आप जो आराम से बैठे सुने, that is saying that if you have a question you can ask in last of the meeting. First of all, I introduce myself that I am a socio-political activist working for the Bahujan Brahmin Samaj in whole India. सबसे पहले मैं अपने बारे में परिचय दे दूं कि मैं एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं जो पूरे देश में बहुजन द्रविड़ों की मुक्ति के लिए काम कर रहा हूं। I am not a social activist. I am a political activist. मैं सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूं। Because Baba Saheb Ambedkar, when he came to Tamil Nadu in 1946, when he addressed among the public, he told to the people that our ultimate goal is to become the ruling class to rule this country. क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब 1946 में तमिलनाडु मद्रास गए तो उन्होंने वहां पे संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को कहा था कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो इस देश का शासक बनना है। He told to the public that you go and write this goal in everybody's wall. उन्होंने उस सभा में अपने लोगों को कहा था कि हमारे इस सभा में मौजूद लोग ये बात नोट कर ले और जाके अपनी दीवारों पे लिख ले कि हम इस देश के शासक हैं। Whether it is a social or political agenda of Baba Saheb Ambedkar. ये बाबा साहब का सामाजिक एजेंडा था या पॉलिटिकल एजेंडा था? Why he started a Labour Party? Why he started a SC/ST Federation? Why he started RBI to this country? What is the reason behind that? Whether it is a social or politics? तो जो उन्होंने RBI बनाई, जो उन्होंने और संगठन शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन बनाए, उसका उद्देश्य क्या था? क्या सिर्फ सामाजिक उत्थान था या पॉलिटिकल जो गोल प्राप्त करना था वो भी था? And also
very important rights, that is the right to vote. तो बाबा साहब ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए, लेकिन जब वो समाज के बीच में संबोधित करते थे, वो कहते थे कि जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वो है आपके वोट का अधिकार। When we retired the constitution, I am practicing as an advocate in Supreme Court of India. I brought up from, I'm born and brought up from Tamil Nadu. But last 7 years I have resided in Delhi. So, when we retired the constitution, the right to vote, he mentioned that one man, one value, one man, one vote, one value. Whether it is social or politics. तो मैं तमिलनाडु में पला बढ़ा और यहाँ पिछले 7 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन उसको लिखा तो उन्होंने वोट के अधिकार को परिभाषित करते हुए कहा कि एक व्यक्ति का एक वोट है और एक वोट की एक वैल्यू है। Some so-called Ambedkar क्या ये सामाजिक राइट है, पॉलिटिकल राइट है? some social, in the name of social, some so-called Ambedkarists, they are polluting the entire system and they are the big hurdles for the revolution of this country. तो ये सामाजिक मूवमेंट के नाम पे बहुत सारे तथाकथित अम्बेडकरवादी हैं जो समाज को प्रदूषित करने का काम करते हैं और समाज का जो मार्ग है उसको भटकाने का काम करते हैं। I brought up from the land of Periyar. I brought up from the school of Periyar. The Tamil Nadu, the Dravidian movement established by Thandai Periyar. मैं तमिलनाडु पेरियार की धरती से आया हूँ जो द्रविड़ आंदोलन का जनक है जिसको पेरियार ने स्थापित किया। Even though I am brought up from, I am from the scheduled caste community, but I am not brought up from the Baba Saheb Ambedkar school. I brought up from the Periyar school of thought. मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ, लेकिन मैंने बाबा साहब स्कूल ऑफ थॉट से नहीं पढ़ा, मैंने पेरियार स्कूल ऑफ थॉट से पढ़ा। I brought up from the school of social justice. Later I came to know, understand about the social transformation. After that I became a student of Manekar Kanshira. मैंने वहाँ सामाजिक आंदोलन के बारे में सीखा पेरियार मूवमेंट से, लेकिन जब नॉर्थ इंडिया में आया तब मैंने मानवर कांसीराम से सामाजिक परिवर्तन के बारे में सीखा। Still now our people, but so-called elite groups also, some scholars, some professors, they are stuck in the social justice movement. In the name of reservation, they are the very dangerous of this community. They are always insisting on social justice. They are not ready to, they are not allowing our people to move from social justice to social transformation. मानवर कांसीराम साहब ने जो सामाजिक न्याय का आंदोलन है उसको सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन की ओर लेके जाने का काम किया, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे समाज में तथाकथित बुद्धिजीवी, डॉक्टर, प्रोफेसर आज भी सामाजिक न्याय तक ही सीमित है, वो आज भी सामाजिक परिवर्तन के मूवमेंट को समझने में असफल है। When we go through the lot of revolution throughout the countries, professors are all working for the political liberation. But in India, the so-called Ambedkarists, they are not ready to come out of their own caste and not come out of their own people of their 15%. जब मानवर कांसीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने पूरे देश में एक राजनीतिक चेतना पैदा की। पूरा वर्ल्ड पूरी दुनिया में एक चेतना पैदा हुई, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे तथाकथित अम्बेडकरवादी है वो अभी भी सामाजिक न्याय पे ही अटके हुए हैं। I have a right to talk about our own people because I am also belong to scheduled caste. I have a right because I am brought up from the scheduled caste family. You are also maybe a scheduled caste family. I have a right to talk about my own family's problem. तो जो कि मैं अनुसूचित जात में पैदा हुआ हूँ और हमें लगता है कि आप
इसलिए मैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के विषय में बात रखने का अधिकार रखता हूं। When I read this topic, I got little bit confused. Does the Bahujin movement want a socio-political empowerment, or a Dravidian people want a socio-political empowerment? जब मैं ये इन्विटेशन कार्ड पढ़ रहा था तो ये जो पहला पॉइंट है, सब्जेक्ट है, उसको पढ़ के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि बहुजन आंदोलन को सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण की जरूरत है या बहुजन द्रविड़ समाज को सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण की जरूरत है। There are more than 1,000 puppet political parties in India in the name of Baba Saheb Ambedkar. यहाँ भारत में आज करीब 1000 बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे करीब 1000 पार्टियां चल रही है। Whether we want to work for the social political empowerment for the 1,000 political parties, ये जो हजारों पार्टियां हैं, क्या ये बहुजन द्रविड़ समाज के सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं? and also I come to know that more than 2 lakhs SC/ST government employees organization functioning across the country for 0.05% of people. और इसके साथ ही इस देश में, पूरे देश में करीब 2 लाख जो कर्मचारी अधिकारी संगठन है वो काम कर रहे हैं, और वो जो काम कर रहे हैं वो कितनी पॉपुलेशन के लिए काम कर रहे हैं? 0.05% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। I should work for the 95% Bahujin Dravidian people's political empowerment who are suffering in the name of the caste for the last 2000 years. लेकिन हम इस देश के 95% बहुजन द्रविड़ लोग जो कि पिछले 2500 साल से जात के नाम पे प्रताड़ित हो रहे हैं, उस समाज के लिए काम कर रहे हैं। Just today is the day for you. You are all, I think you are all educated people who are sitting here. You have to introspect yourself today. It is a day of introspection. तो आप यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, इसलिए आप सबसे हमारा एक कहना है कि आज का जो दिन है वो आत्मचिंतन का दिन। According to my understanding of this invitation, whether this Bahujin Dravidian movement, where is that Bahujin movement, and where we are going, and what is next? हाँ, आज का जो ये कार्यक्रम बुलाया गया है, मैं समझता हूँ कि इसका उद्देश्य है इस बात पे चर्चा करने के लिए कि जो हमारा बहुजन द्रविड़ मूवमेंट है वो कहाँ पे है, आज कहाँ खड़ा है, किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाना चाहिए, इस बात में चिंतन मनन करने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया। We have to meditate how we can empower the socio-politics to our Bahujin Samaj. इसलिए हमें इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि कैसे हमारा जो बहुजन द्रविड़ समाज है उसको हम कैसे सामाजिक राजनीतिक उत्थान कर सकते हैं। You people are continuously listening my word Dravidian. Why I am using the word Dravidian? तो हमारे शब्दों में आप लोग ज्यादातर द्रविड़ शब्द का इस्तेमाल सुन रहे होंगे। मैं क्यों बार-बार द्रविड़ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ? You may not aware about the word Dravidian, but Brahmins know the meaning of Dravidian, and the word Dravidian insists anger to them. तो हमें पता है, आप में से ज्यादातर लोगों को द्रविड़ शब्द के मायने पता नहीं होंगे, लेकिन जो इस देश का ब्राह्मण है उसे द्रविड़ का मतलब बहुत अच्छे से पता है। Arya Samaj not started from the land of Tamil Nadu or South India. Where the Arya Samaj started?
It started from Punjab. Because in Tamil literature is the oldest literature in this country. Not only in this country, the whole world. Tamil literature is the oldest literature because that age itself more than 3,000 years. The Tamil literature is talking about the Indus Valley civilization. Indus Valley civilization is the Dravidian civilization. ये जो हमारा तमिल साहित्य है, ये सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में जो सबसे प्राचीनतम साहित्य है उनमें से एक है। और ये जो तमिल साहित्य है वो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बात करता है और वो कहता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जनक है वो तमिलनाडु और साउथ इंडिया नहीं है, वो आपका उत्तर भारत है, बल्कि अविभाजित पंजाब है। Undivided Punjab. The Indus Valley civilization was in the undivided Punjab. Later, Nehru had given our civilization to the Pakistan. When the Bahujan Dravida party will become a ruler of this country, once again we will get that civilization. It is the icon of the Dravidian movement. इसीलिए जो ब्राह्मणों ने आर्य समाज बनाई वो साउथ इंडिया में नहीं बनाई, उन्होंने नॉर्थ इंडिया में ही बनाई। ये जो द्रविड़ सभ्यता का विकास है वो नॉर्थ इंडिया में और जो अविभाजित पंजाब की धरती है उसमें हुआ था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो अविभाजित पंजाब खंड खंड में बटा हुआ है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जब हमारी बहुजन द्रविड़ पार्टी देश में सत्ता में आएगी, वो जो अविभाजित पंजाब है उसको एक करने का काम करेगी। John Marshall, he was the archaeologist. 100 years before, in 1924, he declared he was the chief archaeologist from the London. He did a survey, he did a study about the Indus Valley civilization 10 years in India, and he declared that Indus Valley civilization was the Dravidian civilization. Now Tamil Nadu is going to celebrate, and our Chief Minister of Tamil Nadu announced to lay the statue of John Marshall in Tamil Nadu. सौ वर्ष पहले अमेरिका में एक लंदन में जॉन मार्शल नाम के पुरातत्ववेत्ता हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया था, ये बताने का काम किया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव है वो नॉर्थ इंडिया में हुआ। इसीलिए उनकी याद में हमारे जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, जो डीएमके सरकार है, वो जॉन मार्शल का स्टैचू बना रही है तमिलनाडु। Why I am using the word Dravidian? The Brahmins could understand about the meaning behind the Dravidian, but our people don't know the meaning behind the Dravidian. Because you people are very much worried about that nowadays the Brahmins entered into the Bahujan movement and the Brahmins entered into the Moolnivasi movement. Why Brahmins are not still now not entered into the Dravidian movement in Tamil Nadu? तो मैं बार-बार द्रविड़ जो शब्द है, द्रविड़ मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अक्सर ये सुनने में आता है कि जो बहुजन आंदोलन था उसमें ब्राह्मणों की घुसपैठ हो गई, जो मूल निवासी आंदोलन है उसमें ब्राह्मणों की घुसपैठ हो गई। लेकिन क्या कारण है कि आज तक द्रविड़ आंदोलन में ब्राह्मणों का घुसपैठ नहीं हो सकी? Tamil Nadu is the only state in this country. A single Brahmin become a MLA and MP. That is the land of Periyar. तो जो तमिलनाडु पेरियार की धरती है वो एकमात्र ऐसी धरती है, ऐसा मूवमेंट है जहां आज भी एक भी ब्राह्मण ना तो एमपी है ना तो एमएलए है। पूरा तमिलनाडु का जो विधानसभा है वो ब्राह्मण मुक्त विधानसभा है। That is the guts of Periyar. That is the guts of Periyar. What is the situation of Ambedkar movement? ये गट्स है पेरियार आंदोलन का। और इसके साथ ही मैं पूछना चाहता हूं कि आज अंबेडकर मूवमेंट का क्या हाल है? Throughout the country, I visited throughout the country last year
Bahujin Dravida Party contested 40 seats throughout the country. I visited almost all the countries. All the Bahujin, all the Ambedkarist movement are begging to the Manwali parties for the 1 seat or 2 seats. That is the mindset of the so-called Ambedkarists in this country. तो पिछले चुनाव जो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें पूरे देश भर में हमारी पार्टी ने करीब 40 पार्लियामेंट मेंबर के लिए 40 कैंडिडेट खड़े किए और उसके संदर्भ में पूरे भारत में हमारा घूमने का एक प्रोग्राम था। मैंने देखा कि पूरे भारत में आज जो अम्बेडकरवाद का जो हस्र हुआ है, जो तथाकथित अम्बेडकरवादी है, तो पूरे भारत में एक सीट के लिए ब्राह्मणवादी पार्टियों से भीख मांगते नजर आ रहे हैं। That is the situation. That is, I am very sorry and ashamed to say that. They don't have a mind to rule this country. But what Baba Saheb Ambedkar did? He wanted to become a governing class to rule this country. ये कहने में मुझे बहुत खेद के साथ मुझे बहुत शर्म महसूस होती जब मैं ये देखता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे तथाकथित अम्बेडकरवादी लोगों के पास शासन करने का, इस देश में शासन करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। और जबकि माननीय बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपने समाज को इस देश का शासक कौन बनते How many years you are going to keep your hands like this? When your hand become like this, this is the mindset of the working class. This is the mindset of the slave class. तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अब अभी और कितने वर्षों तक हम मांगते रहेंगे, मांगने की राजनीति पे विश्वास कर लेंगे। जो शासक वर्ग होता है वो देने वाला होता है और ये बात हमारे लोगों को माननीय कांसीराम साहब ने समझाई। In Tamil Nadu, the Brahmins are not joining in the any Dravidian party. They are joining in the Communist Party, they are joining in the Congress Party, or they are joining in the BJP. तो जो तमिलनाडु का ब्राह्मण है, एक भी ब्राह्मण द्रविड़ मूवमेंट में शामिल नहीं होता। उनको राजनीति करनी है तो या तो वो कम्युनिस्ट पार्टियों को ज्वाइन करेंगे या तो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे या तो फिर अभी ये जो भाजपा वहाँ पे प्रयास कर रही है तो भाजपा में जाएंगे। Because they are not ready to show their identity as a Dravidian identity. They know, because Nehru also in his book in History of India, he mentioned about Aryans that came from the outside of the country. वो ब्राह्मण अपने आप को कभी द्रविड़ नहीं दर्शाना चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि वो द्रविड़ नहीं है। जो ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू था उसने भारत की खोज की किताब लिखी है, उसमें भी उसने लिखा है कि जो आर्यंस है वो भारत के नहीं है, आउटसाइडर है, भारत के बाहर के लोग। Brahmins never ever identified themselves as a Dravidian at any stage. They will not identify. यही कारण है कि द्रविड़ जो ब्राह्मण है वो कभी भी किसी भी कीमत पे अपने आप को द्रविड़ के रूप में नहीं पहचानते। Politics is related to the wisdom. Politics is related to the wisdom because we are sitting in front of Bhagavan Buddha. Politics is related to the wisdom, not knowledge. It is related to the experience plus knowledge. तो जो राजनीति है वो सिर्फ जो नॉलेज है, जानकारी पे आधारित नहीं है, ये जानकारी और ज्ञान का सम्मिश्रण है। You are ready to get the knowledge. You are ready to get the knowledge, but your inner body is not ready to go for the experience. आपके पास जानकारी होगी, लेकिन आपके पास व्यवहार की कमी होती है। Because the rulers require the wisdom to give a good governance. लेकिन जो शासक वर्ग होता है वो अच्छा शासन संचालित करने के लिए उसको विस्डम की जरूरत होती है, उसको बुद्धि की जरूरत होती है। But in India, the wisdom is not ruling. The stupidity, foolishness, crookedness, conspiracies are ruling this country. लेकिन यहाँ भारत में बुद्धिमान लोगों का शासन नहीं है, बुद्धि यहाँ राज नहीं करती, यहाँ षड्यंत्र, धूर्तता, बेईमानी का शासन चलता है। Ideology is shaping the person. Ideology is shaping the community. Whether you think about which ideology is ruling this country, whether you thought
तो जो विचारधारा है वो व्यक्ति को आकार देती है, एक समाज को आकार प्रदान करती है। लेकिन यहाँ इस देश में कौन सी विचारधारा रूल कर रही है? क्या इस समाज को क्या आकार मिल रहा है? Our people are in the dual mind. That is the problem. Dual mind is more dangerous. Because one side they are talking about Baba Saheb Ambedkar and another side they are following the practices of the Hindu Dharma. हमारे जो लोग हैं वो दोहरी मानसिकता पे जीते हैं, और ये जो दोहरा माइंडसेट है, दोहरी मानसिकता है, ये सबसे खराब मानसिकता है। जो हमारे लोग हैं, एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो व्यवहार है वो ब्राह्मणवाद का करते हैं, मनुवाद का करते हैं। Now you ask yourself that which ideology are you following? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछें कि आप कौन सी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। In China, Buddhism ideology is ruling. In Japan, Buddhism ideology is ruling. In America, Christian ideology is ruling. But in India, which ideology is ruling? जो चाइना है और जापान है वहां बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी का शासन है, जो अमेरिका है वहां क्रिश्चियन आइडियोलॉजी का शासन है, लेकिन जो भारत है यहाँ कौन सी आइडियोलॉजी शासन करती है? Unknowingly, one side you are talking about Buddha or Ravidas or Kabir or Nanak, but in practical life you are following the path of BJP ideology, Congress ideology, Aam Aadmi Party ideology. These ideologies are not related to your way of life. तो अनजाने में हम तथागत बुद्ध, रविदास, कबीर और गुरु नानक की बात तो करते हैं, लेकिन जो व्यवहार में हमारी जो व्यवहारिकता है वो भाजपा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के माइंडसेट के आधार पे चलती है। All the ideologies in this country are based upon the Hindutva ideology or Brahmanism ideology. This ideology will not liberate you until this ideology live in this country. You people also struggle for the reservation. ये जो पूरे देश में आज जो विचारधारा दिख रही है, ये हमारे लोगों को मुक्ति नहीं दे सकती, और जब तक ये विचारधारा, जिसको हम ब्राह्मणवादी विचारधारा कहते हैं, वो इस देश में शासन करेगी, हम सिर्फ मांगने वाली कौम ही बने रहेंगे। Today you declare yourself that I am going to follow the Bahujan Dravidian ideology or Bahujan ideology, because in democracy 15% will not rule this country, because all the scheduled caste people are, if you collect them, only 15%. In democracy 15% will not win. That's what Kanshiramji transformed from 15% to 85%. इसलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आज हम लोगों को, आप लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि आज से हम बहुजन विचारधारा या बहुजन द्रविड़ विचारधारा को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ अगर 15% तक ही सीमित रहे, पूरा 15% एक हो जाए, तब भी हम इस देश में शासन नहीं कर सकते। इसीलिए माननीय कांशीराम साहब ने 15 को 85 में परिवर्तित करने का काम किया था, और ये जो माननीय कांशीराम साहब की रणनीति है, यही एक कामयाब रणनीति। So you start to say that our identity is a Dravidian identity. I am the part of the Bahujan. It will disturb the Brahminical party. That's what Kanshiram was saying, that you don't know how to blackmail these so-called Manuvadi parties. तो अगर हम कहते हैं कि हमारी जो पहचान है वो द्रविडियन है और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बहुजन है, तो जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो परेशान होते हैं, और इसीलिए माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि हमें इस ब्राह्मणवाद को ब्लैकमेल करने की राजनीति आनी चाहिए। That's what Kanshiram was saying, that if you declare yourself as a, if you say yourself as a Dalit means a civilized beggar. Kanshiram was using to say that. If you tell the Bahujan means you are like a ruling class,
or you want to become a ruling class or a beggar class? तो महानगर कांसीराम साहब कहते थे कि अगर आप सिर्फ दलित की बात करते हैं, अगर आप सिर्फ 15% की बात करते हैं, तो समझिए कि ये जो आप सब भिखारी समाज बना रहे हैं। लेकिन अगर आप 85% की बात करते हैं, तो वो 85% आपको शासन सत्ता की तरफ लेके जाएगा। अब आपको समझना है कि आप किधर जाना चाहते हैं। And also here mention one topic, leadership crisis in Bahujan Samaj. We should not say now, we should not put that title. Because why? Because these people are Bahujan people are more than 130 crore people are the Bahujan Dravida Samaj in this country. But we are discussing about the leadership crisis. Whether you couldn't find a single leader, a honest leader in this society. It is a very shame. If you declare, if you tell to me in the open means, the Brahmins will celebrate. Oh, these people are still now they are crying for the leadership. तो इसमें एक पॉइंट है लीडरशिप क्राइसिस इन बहुजन समाज में नेतृत्व का संकट। मेरा ऐसा अपना मानना है कि हमें पब्लिकली इस तरीके से अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस देश में हम 130 करोड़ लोग हैं। जो हमारा बहुजन द्रविड़ समाज है वो 130 करोड़ की आबादी वाला समाज है। और जब हम 130 करोड़ लोगों में से कहते हैं कि हमारे पास एक लीडर नहीं है, तो ये बहुजन जो ब्राह्मणवाद है उनको बड़ा खुशी महसूस होती है कि इतने बड़े समाज में इनके पास एक लीडर नहीं। क्या हम इस 130 करोड़ समाज में कुछ अच्छे लीडर नहीं ढूंढ सकते हैं? अगर हम खोजी निगाहों से देखें तो निश्चित तौर पे हमें अच्छे लीडर्स मिलेंगे। I want to say frankly to you, Jack, I don't want to participate this type of Ambedkarist meeting. I am not happy to participate on it because I know what they talk. Because they always want to talk about the problems. You are actually the Ambedkarist movement are giving a space to cry, to moan. तो मैं खुले तौर पे बोलना चाहता हूँ कि आम तौर पे मैं ऐसी सभाओं का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि मेरा अपना अनुभव कि ऐसी सभाओं में सिर्फ समस्याओं पे डिस्कशन होता है, सिर्फ रोने का ही काम होता है, ये हो गया वो हो गया वो हो गया, समाधान पे कोई बात नहीं होती। Because the professors also not guts to talk about the solution. They easy to talk about. Whoever you ask the roadman, the rickshaw wala, tea wala, chai wala, you go and discuss. They are ready to talk about the problem. The same that if you meet the scholars or professors or judges, they are also crying and talking about the problems. But Kanshira was the only person told to us that you talk about the solution. The educated masses are failed to talk about the solution. They are also coming and joining with the crowd and they are also crying about these are all problems in front of us. तो जो आम जनता है वो समस्याओं पे डिस्कस करती है तो समझ में आता है, लेकिन जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, जो स्कॉलर वर्ग है, उसका क्या काम होता है? इसीलिए माननीय कांसीराम साहब कहते थे कि हमें समाधान की बात करनी चाहिए। लेकिन जब मैं ऐसी सभाओं में देखता हूँ कि हमारे स्कॉलर्स भी, जो हमारा आम जनमानस है, उन्हीं की तरह रोना धोना करता है, जबकि स्कॉलर्स का काम होता है समाधान ढूंढना और समाज को बताना। लेकिन हमारा स्कॉलर्स भी जो आम जनमानस है उसी की तरह रोता धोता है ऐसी सभाओं में, और ऐसी सभाएं उनके रोने धोने का अड्डा बन जाती है। इसलिए मैं ऐसी सभाओं का ज्यादातर हिस्सा नहीं बनता। I am coming here to talk about, not to talk about the problems. I am coming here to talk about the solution for our Bahujan Samaj. इसलिए मैं यहाँ समस्याओं पे बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बहुजन द्रविड़ समाज का समाधान क्या है, बहुजन द्रविड़ समाज के मुक्ति का समाधान क्या है, उस पे बात करने आया हूँ। I am talking in front of the Lord Buddha. Lord Buddha has given a four noble truth. What he has given a noble truth? Life is a suffering, the causes of the suffering, there is a solution to. If you find the solution, you follow the right action. Lord Buddha clearly told, but still
in front of Buddha, you are talking about the problems means, who will talk about the solution and right action? अभी हम तथागत बुद्ध की सामने बात कर रहे बैठे हैं। तथागत बुद्ध ने कहा है, जो 4 आर्य सत्य बताए हैं, उन्होंने जो मूल बताया कि दुख है, दुख का कारण है, और कारण समझ जाए तो उसका निवारण है। इसके बाद भी हम उनकी फोटो रख के अभी दुख तक ही सीमित है, दुख तक ही बात करते हैं। उसके जो कारण है, कारण को समझ के उसका समाधान क्या, निवारण के विषय पे बात ही नहीं करते हैं। That's what Baba Saheb Ambedkar told to us. Political power is the only master key which can open any lock, whether it is a social problem, economical problem, cultural problem, educational problem. Political power is the only master key. He told about the solution. इसलिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने समाधान की बात कही। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है, जिससे आप चाहे वो सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, हर समस्याओं के दरवाजे आप खोल सकते हैं। He told about the solution. Ghanshyam ji took a stand to do for the right action. तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने समाधान के बारे में बात करी। माननीय कांशीराम साहब ने उस बात पे स्टैंड लिया और वो पूरे देश में उसको पूरा करने के लिए निकल पड़े। And you see, Guru Ravidas, Guru Kabir, Guru Nanak ji, and even Guru Guru Gobind Singh also fought against his Brahminical forces. And after the 18th century, it happened in the 15th, it happened at 16th century. But after the 18th century also, you see, Mahatma Jyotiba Phule, Chhatrapati Shahuji Maharaja, Narayana Guru, and the Deviya, those Mahapurush, Bahujan Mahapurush also identified who is our common political enemy, ideological enemy, and who is our common friend, ideological friend. They clearly defined it. But what happened in the Bahujan movement? Simply one lady came and started to change Bahujan Hitaya to Sarvajan Hitaya, Sarvajan Sukaya. You people started to clap, oh, Sarvajan Hitaya. We people also accepted the Brahmins. तो अगर आप 16वीं सदी, 16वीं, 17वीं, 15वीं, 16वीं सदी में देखेंगे तो चाहे आप गुरु रविदास को उठाएं, कबीर को उठाएं, गुरु नानक को उठा लें, और यहाँ तक कि गुरु गोविंद सिंह जी तक जो परंपरा चली, वो सारा संघर्ष बराबरवाद के खिलाफ है। इधर हम 19वीं, 18वीं, 19वीं सदी में देखें, 19वीं सदी से लेके 20वीं सदी, तो चाहे आप ज्योतिबा फुले की बात करें, चाहे आप छत्रपति साहू जी महाराज की बात करें, चाहे आप नारायण गुरु की बात करें, चाहे आप पेरियार की बात करें, बाबा साहब की बात करें, सबने जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक क्रांति जगाए रखी। लेकिन माननीय कांशीराम साहब के बाद एक औरत आती है और वो बहुजन मूवमेंट को सर्जन में बदलती है, और उन्होंने जो हमारे महापुरुषों ने ये बताया कि हमारा वैचारिक दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, और यहाँ वैचारिक दुश्मन दोस्त सब एक कर दिए गए, और हमारे समाज के लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, उल्टा तालियां बजाने का काम किया, और यही कारण है कि आज हम ये दिन देखें। All the Bhagavad Mahapurush opened our eyes, but one lady came and she made us all the blind. After Maneva Ghanshyam's demise, no education happened in this country. Now all people are blind. All our Bahujan Samaj in this country. तो हमारे जो बहुजन महापुरुष हुए हैं, उन सभी ने हमारे लोगों की आंखें खोलने का काम किया है, लेकिन एक लेडी ने हमारे सभी लोगों को सुला दिया, सभी की आंखें बंद करने का काम किया है। और आज जो स्थिति है, यही कारण है कि आज जो स्थिति है, पूरा समाज जो है स्वप्निल अवस्था में चला गया है।
we are doing continuously. तो मैं देख रहा हूँ कि आज पूरे देश में कोई मूवमेंट नहीं बचा। हम ऐसी सभाओं पे आएंगे, यहाँ से जाने के बाद सो जाएंगे। हमारे लोगों का काम बस ईटिंग, मीटिंग एंड चीटिंग बन के रह गया है। You are cheating yourself and trying to cheating others also. तो हम अपने आप को भी चीट कर रहे हैं और दूसरों को भी चीट करने का काम कर रहे हैं। If you cheat yourself, that is not a problem for the society. But you people are trying to cheating others. That is the problem. अगर हम सिर्फ अपने को चीट करते हैं तो ये समाज के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब हम समाज को चीट करना, समाज को धोखा देने का काम करने लग जाते हैं तो ये समाज के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। Our people are bind with the clientage politics. You know the meaning of the clientage politics? Clientage politics means that the Brahmin people are paying the Bhavin Dravidian leaders to do the Brahmin Baniyas business. That is the meaning of the clientage politics. तो हमारे लोग आज ग्राहक राजनीति में फंसे हुए हैं। ग्राहक राजनीति का मतलब है कि जो ब्राह्मण बनिया ताकतें हैं वो हमारे लोगों को फंडिंग करती है ब्राह्मण बनिया राजनीति को स्थापित करने के लिए। Our Kanshiram ji wanted to make our community politics as an institutional based politics. लेकिन People are different agenda, social justice agenda, reservation agenda, this begging agenda, that begging agenda. But Brahmins having only one agenda. That agenda is to rule this country. That is their only agenda. तो जो ब्राह्मणों की जो संस्थानिक राजनीति है, जो उनकी आरएसएस है, वो एक ही एजेंडा पे काम करती है। हमारे लोग सामाजिक न्याय के एजेंडे पे काम करेंगे, रिजर्वेशन के एजेंडे पे काम करेंगे, और भी विभिन्न मांगों के एजेंडे पे काम करेंगे। लेकिन जो ब्राह्मणवादी राजनीति है, उनकी जो सांस्थानिक राजनीति है, जो उनकी आरएसएस है, वो एक ही एजेंडे पे काम करती है कि कैसे इस देश को शासित करना है, कैसे इस देश में कुछ मुट्ठी भर लोगों का शासन स्थापित करके रखना। That's what they established one institution, institutional based politics. इसीलिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्थान का निर्माण किया है, संस्थानिक राजनीति की शुरुआत की। The Dravidian movement is having another institution in this country to counter the RSS institution. जब मैं पूरे देश में देखता हूँ तो एक तो आरएसएस की संस्थानिक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, और दूसरी जो हमें पूरे देश में नजर आती है संस्था, वो है द्रविडियन संस्था, जो ब्राह्मणवाद के विकल्प के रूप में या ब्राह्मणवाद के काउंटर के रूप में काम करती है। But we people, Bahujan activists, the Kanshiramists, the Kanshiramjis followers, we failed to establish the institutional based politics in this country. We have to try to do. लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो माननीय कांशीराम साहब के अनुयायी फॉलोवर्स हैं, जो SC/ST संगठनों में एक्टिविस्ट हैं, वो एक संस्था का निर्माण करने में आज भी असफल रहे हैं, और यही कारण है कि कोई प्रभावी राजनीति यहाँ पे नहीं होता। So I want to explain about, because Kanshira Pariya was the first started the movement against the Brahmin in India, anti-Brahmin movement in India. He was the person starter. So I also know, because I brought up from that school of thought. So it is very similar. Later I could understand about the Kanshiramji thought. I am the only person throughout the country talking about the two philosophies. One philosophy is Kanshiram philosophy and another philosophy is Brahminical philosophy. The fight is between in this country Kanshiramism versus Brahminism. That is my conclusion. That's what I am propagating the Kanshiram ideology throughout the country. तो गैर ब्राह्मण आंदोलन की शुरुआत करने वाले उसके जनक पेरियार थे, और मैं तमिलनाडु में पला बढ़ा तो पेरियार के विषय में जो गैर ब्राह्मण आंदोलन है उसके विषय में शुरुआती ज्ञान हमने प्राप्त किया। बाद में जब मैं नॉर्थ इंडिया और कांशीराम साहब के बहुजन आइडियोलॉजी से रूबरू हुआ तो मुझे दोनों में बड़ी सिमिलरिटी नजर आई।
जो पेरियार का मूवमेंट है वो सामाजिक मूवमेंट है जो गैर ब्राह्मणों के लिए था, और जो कांसीराम का मूवमेंट है वो राजनीतिक मूवमेंट है जो बहुजनों के लिए था, 85% लोगों के लिए था। इसलिए मैंने ये तय किया कि ये दोनों बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले मूवमेंट है, पेरियार का सामाजिक मूवमेंट और कांसीराम का राजनीतिक मूवमेंट। इसलिए मैंने सोशियो पॉलिटिकल पेरियार और कांसीराम को आइकॉन बना के सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट का को शुरू किया और पूरे देश में उसको प्रचार प्रसार करने का काम किया। The two icons are the most dangerous icon to the Brahmins. One is Periyar and Kanshiram. Because nowadays RSS is also celebrating Baba Saheb Ambedkar birth anniversary. Better than you. तो आज तो RSS भी आपसे अच्छा बाबा साहब का जन्मदिन मनाने लगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट जो कामयाब विचारधारा वो दो विचारधारा है, दो प्रतीक है, एक पेरियार है, एक कांसीराम है, जिनको ब्राह्मणवाद ना तो पचा पाया और ना तो उसको अपने में मिला पाया। In South India there is no Varna system. There is no Varna system in South India. There are two classes. One is Brahmin and non-Brahmin. We divided ourselves like that. So that's what we brought up from the non-Brahmins movement. So what the Brahmins did when Periyar talked against the Brahminical ideology or Brahminical conspiracy, what the Brahmins did, they conducted one puja. Why they conducted a puja? Periyar will die very soon. That was the title given to that puja. तो जब उधर पेरियार ने ब्राह्मण के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो वहाँ ब्राह्मणों ने एक पूजा शुरू की, एक श्राप टाइप का दे दिया कि ब्राह्मण बहुत जल्द मर जाए, जो पेरियार है वो बहुत जल्द मर जाए। इसके लिए ब्राह्मणों ने वहाँ दक्षिण भारत में पूजा अर्चना शुरू कर दी। Here in North India, the Gundagiris and the Kshatriya Gundagiris are supported to the Brahmins. And Vaishyas are giving the money to the Brahmins. But in Tamil Nadu, there is no Vaishya, there is no Kapoor or so that's what Brahmins are very much worried about Periyar. वो जो साउथ इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक बनावट है, वो नॉर्थ इंडिया की तरह नहीं है। वहाँ दो वर्ग है, एक ब्राह्मण है, दूसरा गैर ब्राह्मण है। लेकिन यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर बनिया, फिर शूद्र, फिर अतिशूद्र, तो यहाँ पे जो ब्राह्मणवाद को बढ़ाने का, उसको पालने का जो काम करता है, वो क्षत्रिय और बनिया मिलके काम करता है। The Brahmins conducted 48 days puja to finish Periyar in the land of Tamil Nadu. What happened? Whoever did prayer against the Periyar, the Brahmins, they died, they passed away earlier of Periyar. जब पेरियार ने वहाँ पे गैर ब्राह्मण आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत की, तो ब्राह्मणों ने 40 दिन तक उनके मृत्यु के लिए जो है तो पूजा अर्चना की कि ये जल्दी मरे। और संयोग देखिए कि जो 40 दिन तक पूजा करने वाले लोग थे वो पेरियार से पहले मरे। So not only you simply get the inspiration, you have to act like a Periyar, you have to work like a Periyar. तो ये जो है तो सिर्फ प्रेरणा लेने तक ही सीमित ना रखे इस चीज को, हमें पेरियार की तरह काम भी करना पड़ेगा, तब जाके इस मूवमेंट को हम मंजिल मकसद तक पहुंचाएंगे। The job of the Brahmin is to care in the name of God. That is their work. They make afraid.
तो जो ब्राह्मण है उनका मुख्य काम है हमारे लोगों को डरा के रखना, हमारे लोगों में भय पैदा करना। People who are usually afraid have more faith in the God. जो व्यक्ति जो जितना डरते हैं वही लोग उतना ज्यादा भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठने का काम करते हैं। The Hindus are making afraid. Now, lot of women out of their afraid, they are going to the temple. तो हमारे लोग जो डर है, जो ब्राह्मणों द्वारा फैलाया डर है, उस डर के कारण मंदिरों में जाते हैं और हाथ जोड़ के भगवान से भीख मांगते हैं। That what Guru Granth Sahib was saying to us, if you are afraid, you don't come to us. लेकिन जो सिखों का धर्म ग्रंथ है, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, वो कहते हैं कि अगर आप डरते हैं तो आप हमारे पास मत आइए। हमारे पास डर के कारण हमारे पास नहीं आना। Our wife is not afraid, wala. So if you are afraid, means don't come to us. Guru Granth Sahib really said. तो जो बाहे गुरु है, सिखों ने कहा कि जो बाहे गुरु है वो किसी को डरा धमका के अपने साथ अपने पास नहीं बुलाते। इसलिए जब कोई सिख गुरुद्वारे में जाता है तो वो निर्भय होकर निडर होकर जाता है। 3% only microscope community. 3%. You see, in democracy, 3% is kuch nahi. We call themselves as a microscope community. But they are keeping the Communist Party, Congress Party, BJP Party, Aam Aadmi Party, all the parties, national parties are running by the 3% Brahmins. Not only legislation, they are sitting in the Supreme Court also. I am a Supreme Court lawyer. The Supreme Court occupied with the Brahmin people, the 3% Brahmin. तो अगर राजनीति में देखें तो 3% कुछ भी कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यहाँ भारत में आप देखेंगे कि 3% ब्राह्मण, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, इस देश में जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको संचालित करने का काम 3% ब्राह्मण, जो कि बहुत इस देश की आबादी में एक सूक्ष्म आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी सारी राजनीतिक पार्टियां उनके मुट्ठी पे, जो इस देश की कार्यपालिका है वो 3% ब्राह्मणों की मुट्ठी में, और यहाँ की जो न्यायपालिका है वो भी 3% ब्राह्मणों की मुट्ठी। Unfortunately, nowadays, our social medias, social media is not controlling by these Brahmin people. Social media is controlling by the Brahmin Samaj. Luckily, with the globalization, with the support of the globalization, nowadays our messages are reaching to the Brahmin Samaj. तो वैसे तो यहाँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी ब्राह्मणों के हाथों की कठपुतली है, लेकिन जो हमारा सोशल मीडिया है उससे वो हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम बना रहा है। Why these Brahmins are controlling the legislation, judiciary and administration? They are 3%, but how they are controlling? ये जो 3% ब्राह्मण है, ये कैसे इस देश की जो इस देश की विधान पालिका है, जो इस देश की कार्यपालिका और न्यायपालिका है, कैसे उसको सिर्फ मुट्ठी में ब्राह्मण कंट्रोल कर लेता है? Because of the chamchas. Because of the chamchas, they are controlling the 3 layers of the democracy. ये जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, उसको जो मुट्ठी में ब्राह्मण कंट्रोल करने में सक्षम है, वो हमारे समाज के चमचों का उपयोग करके इसको कंट्रोल करने में सक्षम होता है। ये जो त्रासदी है ये हमारे चमचों की वजह से है। Chamchas are the gods, are the real gods to the Brahmins. They are the god. तो ब्राह्मणों के लिए जो भगवान का काम कर रहे हैं वो चमचे कर रहे हैं। आज
चमचे भगवान को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, उनके भगवान बन के बैठे हुए हैं। You today you think about yourself that you are a god to the Brahmins or you are god to the Bahman Samaj. इसलिए आज आपको यह सोचना है कि आप ब्राह्मणों के भगवान हैं, ये बहुजन द्रविड़ समाज के भगवानों के हितैषी हैं। So I want to say that I come here to make the awareness about the importance of the political power, and I am coming here to talk about who is our common ideological friend and who is common ideological enemy. इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आज आप लोगों के समक्ष आया हूं तो उसका उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को जो राजनीतिक सत्ता का जो महत्व है उसके विषय में बताने आया हूं। Political power and awareness about it. और उसके विषय में आप लोगों को जागरूक करने आया। And also I want to tell to you that just to get out of the caste, just to start to mingle with, because in last year with the support of Sikh people at California, they passed a bill in 2023 bill. The California legislature passed a bill in 2003, the burning the discrimination on the basis of the caste. 90% Sikh people worked to pass that bill. Pass the bill at California. तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब हमारे लोगों को ये जाति को छोड़ देना चाहिए, इसमें हमारा कोई भी हित नहीं है। और अभी कुछ दिनों पहले कैलिफोर्निया में सिखों ने एक बिल पास किया था और वो 90% बहुमत के साथ उन्होंने पास किया था कि सिखिज्म में कोई जात भेद नहीं रहेगा। I am not coming here to talk about my own religion, because religion is a personal matter. I am coming here to talk about the politics, our Bahujan Samaj politics. तो मैं यहाँ कोई धर्म की बात नहीं करने आया हूँ, क्योंकि जो हमारा धर्म है वो हमारा व्यक्तिगत मामला होता है। मैं यहाँ बहुजन द्रविड़ राजनीति की बात करने आया हूँ। Wherever these Brahmins are going from out of the country, they wanted to implement the Brahminism in all the countries. ये जो ब्राह्मणवादी लोग जो ब्राह्मण हैं, वो चाहे भारत हो या भारत के बाहर विदेश में भी जब ये जाते हैं तो अपनी ये जातिवादी व्यवस्था को वहाँ भी स्थापित करने का प्रयास करने से नहीं चूकते। They wanted to establish the Brahminism in America. But you people are going to America and you also making caste-based association. Caste is in this country. Why you people are carrying the caste from India to America, India to Dubai, India to Australia? You also polluting the another countries in the name of the caste. तो ये जो जाति व्यवस्था है ये ब्राह्मणों की देन है, और पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में भी जो ब्राह्मणवादी संगठन है वो चाहते हैं कि जाति को यहाँ भी मान्यता मिले, लेकिन हमारे लोग भी जो विदेशों में रह रहे हैं वो भी वहाँ जातियों के नाम पे संगठन बनाते हैं। अगर जात के नाम पे बेनिफिट चाहिए तो भारत में जात के नाम पे बेनिफिट मिलते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, वहाँ जाति की क्या जरूरत है? वहाँ तुम कौन सा जात के नाम पे रिजर्वेशन तुमको मिलेगा? तो कम से कम जब बाहर जाते हैं हमारे लोग तब तो जाति छोड़ देनी चाहिए, लेकिन जाने अनजाने वहाँ भी वो ब्राह्मणवाद का एजेंडा ही फॉलो करते नजर आते हैं। Caste is not related to it is related to the psychological feelings. It is not related to the beauty. It is not related to the education. It is not related to the position. It is related to the birth. I am an advocate. Nobody called me as an advocate caste. They are asking my caste, which caste you born? तो जो You people are simply saying, asking your occupation based caste. No. My occupation is not a shoemaker. My occupation is not a farmer. My occupation is doing a law practice. Whether these people are ready to say that I am an advocate caste or doctor caste or otherwise professor caste or chartered
It is related to the birth. So that's what. If you want to kill the caste, you have to become a ruler and ruling class in this country. That is the. If you become a ruler of this country, then only we will establish the Begumpura Khalsa. तो ये जो जाति है, जाति हमारे प्रोफेशन से, हमारे कर्म पे आधारित नहीं है, ये जन्म पे आधारित है। और ये जो जन्म आधारित जाति व्यवस्था है, ये तभी खत्म की जा सकती है जब इस जाति से सताए गए लोग इस देश का शासक बनेंगे। इसीलिए हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, चाहे माननीय कांशीराम साहब हो, उन्होंने कहा है कि अगर आपको इस जाति की बात से मुक्ति चाहिए तो आपको इस देश का शासक बनना पड़ेगा। सिर्फ शासक बन के ही आप इस देश से इस जाति रूपी कोड को खत्म कर सकते हो। In 1699, more than 7,000 people assembled at Anandapur Sahib. Guru Gobind Singh conducted one assembly to eradicate the caste. That was the first annihilation of caste assembly happened in this country in 1699, conducted by Guru Gobind Singh. तो 1699 में आनंदपुर साहिब पंजाब में सिखों के जो 10वें गुरु है गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने एक राष्ट्रीय स्त्री सभा का आयोजन किया। उसमें पूरे देश से करीब 70,000 लोग शामिल हुए और उस सभा में उन्होंने जो जाति के नाम की पूंछ है उसको काटने का काम किया। वो पहली सभा थी जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात के उच्छेद की बात करने के लिए आयोजित हुई थी। और उस सभा में उन्होंने घोषणा की थी कि मानस की जात सब है, एक है पहचान वो। मानस की, मनुष्य की कोई अलग अलग जाति नहीं है, एक ही जाति है। Guru Gobind Singh chopped the tail of the caste. Guru Gobind Singh chopped the tail of the caste. But still now our people are carrying the caste name as a tail in everybody's name in North India. The same, Dr. Periyar also in 1960, he also chopped the tail of the caste in Tamil Nadu. तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने जात की पूंछ काटने का काम किया था। और सेम उसी तरह 1916 में पेरियार ने तमिलनाडु के अंदर वही काम किया था। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे लोग आज भी उस जात के पूंछ को लगाए घूमने का काम करते हैं। Caste is the only problem in this country. No other problem. Caste is the only problem. तो इस देश में एकमात्र समस्या जो है वो जाति है। जात के अलावा इस देश में जो भी समस्याएं हैं वो जाति से जुड़ी हुई, जात से उत्पन्न हुई समस्या। Until Hinduism is alive, casteism is also alive. If casteism is alive, the untouchability is also alive. The problem is in Hindu religion. जब तक इस देश में हिंदूवाद, ब्राह्मणवाद पैदा है, स्थापित है, तब तक जातियां बनी रहेगी। और जब तक जातियां बनी रहेगी तब तक हमारे समाज में छुआछूत, हमारे समाज का अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होता रहेगा। ये जो समस्या है, सारी समस्याओं की जड़ ये जाति है। Our National Crime Bureau was saying in every 3 hours, in every 1 hour, 3 Dalit rape and murder is happening in this country. तो इस देश का जो राष्ट्रीय अपराध निवारण ब्यूरो है, नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि इस देश में हर घंटे 3 महिलाओं का, जो शेड्यूल कास्ट की 3 महिलाओं का रेप और मर्डर होता है हर घंटे। But still now in the name of Buddha, we are tolerating. Tolerance, in the name of tolerance, we are accepting everything. But Guru Gobind Singh had given to us weapon, Kripan, that is a symbol of self-respect and dignity.
लेकिन आज हम The title itself, Bahujun Swabhiman, self-respect. How to ensure your self-respect? तो आज हम तथागत बुद्ध के नाम पे सब कुछ सहते हैं, अहिंसा की बात करेंगे, अहिंसा की बात करेंगे, और दूसरी तरफ हमारे महिलाओं का हर घंटे 3 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, हर घंटे हमारे लोगों का कत्ल हो रहा है, हमारे जो लोग हैं उनके स्वाभिमान और गरिमा को लातों तरह कुचला जा रहा है, और हम कहते हैं हम अहिंसक बने रहेंगे। तो कैसे हम अपने लोगों की सुरक्षा और स्वाभिमान को इंश्योर करेंगे? जैसा कि ये जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर है बहुजन स्वाभिमान संघ, स्वाभिमान सेल्फ रिस्पेक्ट, उस सेल्फ रिस्पेक्ट को हम कैसे बढ़ाएंगे? Without weapon, we will not save our daughter, mother and sisters from our command. इसको अपनी गरिमा, अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब ने कृपान दी। बिना कृपान के, बिना हथियार के हम अपने माँ बहनों का सम्मान नहीं बचा पाते। Why we are getting afraid about America? Because America is selling a weapon. The whole world is getting fear when we talk about America, because America is having a lot of weapons. तो आज Without weapon, the problem is in this country is self-respect, dignity. With our weapon only, we have to safeguard our community from these damaging forces. तो हमारा जो अमेरिका है, अमेरिका से पूरी दुनिया क्या डरती है? जानती है उसके पास आधुनिक से आधुनिक हथियार है, तो इसलिए अगर उनसे कोई पंगा लेगा तो वो ठीक कर देगी। तो जो हथियार है वो आपको सुरक्षित करने का एक माध्यम होता है। हमारे लोगों का जो गरिमा और सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बचाने का जो एक माध्यम है वो यही है कि आज हमारे लोगों के हाथ में भी हथियार होना चाहिए, जो कि मनवादी सरकारें हमें नहीं प्रोवाइड कर रही। So that time the Kirpan was the weapon, but in democracy that vote is your weapon. लेकिन उस टाइम गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम जो मुख्य हथियार होता था अपनी और अपने समाज, अपने बहन बेटियों की रक्षा करने का, वो तलवार मुख्य हथियार होता था। लेकिन इस लोकतांत्रिक युग में जो सबसे सशक्त हथियार है वो आपकी ये उंगली है, आपका वोट का अधिकार है। अगर आप अपने वोट के महत्व को समझ लें तो आप सब कुछ सुरक्षित कर सकते हैं सिर्फ एक उंगली का इस्तेमाल कर। This weapon is more powerful than the bullet. This vote is a powerful weapon than the bullet and talwar. ये जो हथियार है, जो वोट नामक हथियार है जो आपको मिला हुआ है, वो तलवार और बंदूक से कहीं ज्यादा पावरफुल हथियार है। But what is happening when the election comes? Because you people don't understand the value of the vote. That's what you are simply selling for biryani or otherwise 200 rupees or 1000 rupees. You people are selling our valuable weapon to our enemies. So that's what 3%. How the 3% is ruling this country? Because knowingly or unknowingly, you are selling this vote to the Brahminical. तो हमारे जो लोग हैं वो वोट का जो महत्व है, उसकी जो पावर है, उसको ना समझने के कारण वो कुछ प्लेट बिरयानी में या 100-200 रुपए में अपने वोट को बेचने का काम करते हैं, और उस वोट को खरीद के बराबरवाद इस देश में शासन करता है। My politics is here not a social justice politics. My politics is a social transformation and economical emancipation politics. तो इसलिए जो हमारी राजनीति है वो सामाजिक न्याय की राजनीति नहीं है। हमारी राजनीति सामाजिक परिवर्तन और बहुजन द्रविड़ समाज की आर्थिक मुक्ति की राजनीति। When the growth social transformation comes in this
country, then only we can see the casteless society. Because Baba Saheb Ambedkar's mission also to create a casteless society in this country. How we can create a casteless society? Once our Bahujin Samaj become a ruler of this country, then only we can create a casteless society. तो इस देश में जात विहीन समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब इस देश में जात से सताए गए लोगों के हाथ में इस देश की शासन सत्ता हो। At any cost, you should not compromise with the Brahminical forces. I want you, I tell to you, at any cost, you should not compromise with the Brahminical forces. इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पे आप लोग ब्राह्मणवादी ताकतों से समझौता ना करें। So now you are living, luckily you are living in the Mayavadi period. What happened right now? So she compromised with the Brahminical forces. That's what she got a big zero. तो संयोग से आप माया युग में जी रहे हैं और आपने मायावती की जो उसने किया उसका असर भी देखा है। मायावती ने ब्राह्मणों से समझौता किया और उसका नतीजा ये रहा कि पूरा बहुजन मूवमेंट आज शून्य में पहुंच गया। That's what lot of atrocities, humiliation, violence are happening in this country because we people compromise with the Brahminical forces. और यही कारण है कि आज एक बार फिर से हमारे समाज के साथ अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, हत्या एक बार फिर से बड़े पैमाने पे शुरू हो गई है। और ये इसका सब कारण ये है कि हमारा जो मूवमेंट है वो विभ्रमित हुआ है ब्राह्मणवाद से समझौता करने के कारण। Baba Saheb Ambedkar consolidated 2,500 castes in this country. Manivar Kanshiram ji conduct, he assembled, he make a assembly of 7,000 castes. He wanted to consolidate. Kanshiram wanted to consolidate around 7,000 castes. He transformed. Kanshiram he transformed from Baba Saheb Ambedkar 2,500 castes to 7,000 castes. But what is happening right now? Nowadays people started to talk about Chamar politics or Valmiki politics or otherwise in Tamil Nadu, in Bengal, that Namashudra politics, in Andhra Pradesh, Mala Madhika politics, in Tamil Nadu, Pallaparaya politics. Our people, more than 200 years back they went. Nowadays, if I talk about the politics of the Bahujin politics and Dalit politics, our people are not ready to listen. Our people are ready to listen. If I talk about the Chamar politics, oh, this man is a good man. तो जातियों में बिखरे समाज को करीब 2500 जातियों को एक शेड्यूल में लाके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक जाति का शेड्यूल कास्ट 2500 जातियों को एक शेड्यूल में उन्होंने इकट्ठा करने का काम किया। जब मान्यवर कांशीराम साहब आए तो उन्होंने करीब 7,000 जातियों को मोबिलाइज करके बहुजन समाज बनाने का काम किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारा समाज 2500 साल पीछे जा रहा है। आज हम ना तो शेड्यूल कास्ट की बात करने में सफल हो रहे हैं, ना बहुजन समाज की बात करने में सफल हो रहे हैं। हम चमार की राजनीति करने में बिजी है, वाल्मीकि की राजनीति करने में बिजी है, कुर्मी की राजनीति करने में बिजी है, गुज्जर की राजनीति करने में बिजी है। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो हमारा समाज आज 2000 साल पीछे जाने का काम कर रहा है। और इस तरीके का टकराव जब तक रहेगा हम इस ब्राह्मणवाद से लड़ने में सफल नहीं हो सकते। This is happened because of the Mayavadi's misdeeds of Sarvajan Mansa. ये जो आज ये विकराल रूप धारण किया है, समाज जो दिग्भ्रमित हुआ है, इसकी जिम्मेदार मायावती है जिसने कांशीराम के प्रयासों से हटके ब्राह्मणवाद से समझौता करने का काम If your mind not transformed, you will not get any remedy to us. Just the transform. Consciousness transformation is necessary. तो जो
मुख्य परिवर्तन है वो मानसिक परिवर्तन होता है। हमारी जो मानसिकता का बदलाव है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। I appeal to you that you start the work from Kanchira, not Mayavati. तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप मान्यवर कांसीराम के रास्ते पे काम करना शुरू करिए, मायावती के रास्ते पे नहीं, क्योंकि आपको जीत की ओर लेके जाएगा कांसीराम का रास्ता, मायावती का रास्ता नहीं। Because Kanchiram is politics, Kanchiram is formula, Kanchiram is politics, make a brotherhood with SC, ST, OBC and religious minorities of this country. क्योंकि जो मानवर कांसीराम साहब का फार्मूला है वो SC, ST, OBC और रिलीजियस जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उन सबको एक साथ लाने की, एक राजनीतिक सामाजिक भाईचारा बनाने की बात है। Kanchiram is Hiravas, golden age of our people. Now we came to the dark age. जब मानवर कांसीराम साहब का युग था तो हमारा समाज एक स्वर्ण युग की तरफ आगे बढ़ रहा था। पूरे देश में हमारे समाज की एक अलग चेतना थी, लेकिन आज समाज अंधकार युग में जीवन जी रहा है। Change, if you want to happen a change, we need some partnership. That partner we have to call the OBCs, we have to call the Muslim Samaj, we have to call the Buddhist Samaj, Christian Samaj. We have to make a brotherhood among each other. Then only we become a ruler of this country. तो हम इस जो डार्क एज है, जो अंधकार युग है, इससे स्वर्ण युग उजाले की ओर अगर जाना चाहते हैं तो हमें एक बार फिर से जो समुदाय है, जो SC, ST, OBC समुदाय, उसमें भागीदारी की बात शुरू करनी पड़ेगी, उसमें पार्टनरशिप की बात शुरू करनी पड़ेगी, उसमें भाईचारे की बात शुरू करनी पड़ेगी। हम SC, ST, OBC रिलीजियस माइनॉरिटी में सामाजिक राजनीतिक भाईचारा बना के ही इस देश में शासक कौन बन सकते हैं। In democracy, single caste will not win. We have to make a brotherhood with the other caste also. Their problem also same like us. तो Make a political alliance with those people. तो जो हमारी समस्या है, ऐसे इस देश में जो 85% लोगों में जो जातियां हैं, सब जातियों की ऐसी ही ब्राह्मणवादी समस्याएं हैं। तो इसलिए उस समस्या के आधार पे, उनका ब्राह्मणवाद के आधार पे उनका शोषण समान रूप से होता है। तो जिनका ब्राह्मणवाद के आधार पर शोषण होता है उनको हम एक साथ राजनीतिक सामाजिक भाईचारे के आधार पे एक साथ लाके ही इस देश में एक विजयी राजनीति का आगाज कर सकते हैं। Our vision is to make a Begumpura Khalsa Raj in this country. That is a solution. We are talking about the solution throughout the country. Begumpura Khalsa Raj, Begumpura concept has given by Guru Ravidas. Khalsa, the word Khalsa has given by Guru Kabir. So based upon that ideology, we are roaming throughout the country to make a Begumpura Khalsa Raj. Through that Khalsa Raj, then only we will see the casteless society, egalitarian society in this country. In this subject, I conclude my speech. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Jai Kanchiram, Jai Bhimla. तो इस देश में आज ब्राह्मणवाद का राम राज चल रहा है, लेकिन हम इस देश में बेगमपुरा खालसा राज की स्थापना करना चाहते हैं। बेगमपुरा जो शब्द है वो गुरु रविदास की देन है और जो खालसा शब्द है वो गुरु कबीर की देन है। और जब इस देश में बेगमपुरा दुख मुक्त शासन स्थापित होगा तभी इस देश के जो बहुजनों की ज्यादातर समस्याएं हैं उनका छुटकारा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय पेरियार, जय कांसीराम। बहुत बहुत धन्यवाद।